अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's discuss the last study topics and then we move on to study and look around what topic should we cover later on. We discuss about the understanding of the statements. हमने different statements देखी थी last time और उसकी qualification of those statement हमने उसको understand किया था, उसकी qualification को हमने देखा था and then we did and go through different numericals. Now the next is basically the few numerical which are left. We're going to go through with that exercise and the company and project cost of capital and then measuring the cost of equity, which is a part of your today's topics. Now remember the Percival investment group, the hygiene group, उसके अंदर जो B portion है वो अब हम start करेंगे. Could Percival do even better by investing equal amounts in the corporate bonds and portfolio and the index fund? Now remember कि जनाब ये एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे अभी हम आगे जाकर देखेंगे हाउ इट गो अराउंड एंड इट बेसिकली सेज कि जनाब आपका इंडेक्स फंड है और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड आपका है पोर्टफोलियो, हाउ अबाउट कि जी अगर कोई बेटरली परफॉर्म वो कर सकते हैं एज द प्रीवियस. द कोरिलेशन बिटवीन द बॉन्ड पोर्टफोलियो एंड द इंडेक्स फंड इज 0.1, राइट जी, जो कि प्लस के अंदर है. तो यहाँ पे जो आपका जो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है दैट इज बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस गोइंग टू बी रिटर्न ऑफ योर न्यू पोर्टफोलियो. ठीक है जनाब. एंड देन again this x1 into r1 then the x2 into r2, that is basically 0.5, which is basically the weightage of it, weights assigned. क्यों? क्योंकि जनाब इन्होंने कहा कि जी equal amounts. Remember students, these are written as equal amounts. If suppose 100% of the is the investment, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is basically the investment, right. अगर आप यहाँ पे corporate bond की बात करते हैं and plus आप index fund की बात करते हैं तो यहाँ पे 50% each जो equal है वो कैसे होगी? अगर हम इसमें half 50% each कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ half of the 100%. ठीक है जी, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है. Right students? So in this way you can easily calculate the return of the new portfolio, which is basically the combination of what? The corporate bonds and the index fund IF, and this 0.5 going to multiply with whatever the individual returns, and this going to multiply with this, and you come up with the total amount of 11.5%. Now we move on to try to find out कि जनाब इसका बताइए कि आपको जो इसका वेरिएंस है, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, हाउ टू कैलकुलेट इट. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी इजीली नो कि जो आपका वेरिएंस है दैट इज बेसिकली द एक्स स्क्वायर, जो कि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो वेरिएंस है, एंड देन अगेन 2 इंटू x1 x2 इंटू जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और आपका कोवेरियंस है, जो यहाँ पे कोरिलेशन है. दिस इज बेसिकली द कोरिलेशन, राइट, कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है जनाब. एंड दिस इज बेसिकली स्टोर्ड एट 0.1, जो कि ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड वी गॉट द रिस्पेक्टिव वेट्स and their respective standard deviation, and then you're going to this is basically what you're going to add this amount as well, which is a product of these two. Now this gives you the variance of it. When you try to find out the variance, that gives you 0.0097 and take the under root of it. अगर मैं कहूँ कि जो standard deviation है basically this is, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एनी पोर्टफोलियो, जो कि हमारा पोर्टफोलियो किसका है? कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड देन इंडेक्स
funds, right students? So this is basically the under root of variance that is given here. ठीक है जी. Now the variance, we get the 0.0097, we take the under root, and the percentage given to us as compared to their respective expected return of the portfolio, that is 9.87 is the standard deviation. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब आपका जो expected return of your portfolio, that is 11.5, and आपका जो standard deviation of our portfolio, that is basically 9.85%. ठीक है सही. So you can easily compare कि जनाब इसकी जो volatility है, इसकी variation है, जो आपकी standard deviation show करता है कि आपकी जो मीन एक्सपेक्टेड मीन जो वैल्यू है उसकी वेरिएशन उसकी वॉलेटिलिटी को एड्रेस कर रहा है कि जी हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट देयर. सो दिस इज बेसिकली 9.85%. Now dear student, understanding therefore he can do even better by investing equal amounts in the corporate bond portfolio and the index fund. The reason being that कि जनाब आपकी जो previously आपकी जो expected return and with respect to variance था, that is a bit higher as compared to this combination new portfolio. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि this is basically the new portfolio you're talking about, and this is your corporate bonds, and this is your index fund. ठीक है जी. तो ये इसमें always better off, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी going to be better off while investing in each, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 11.5% इंक्रीज कर गया है फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इस पोर्टफोलियो डिक्रीजेस टू 9.85%. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कंपेयर इट बाय एनालाइजिंग कि जी आप उस पोर्टफोलियो का वेरिएंस, उसकी वॉलेटिलिटी, उसका रिस्क फैक्टर आप कंसीडर करते हैं, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब उसका जो रिटर्न है वो कैसे इफेक्ट किया है. ठीक है जी. Now there may be, now let's go through with the explanation जो आपकी statements है, जो explained statements है, और हम उसको देखेंगे. we try to understand and build the consensus कि जनाब उसकी एक understanding develop करेंगे. right now let's find out कि जनाब ये जो statement है ये आपको क्या कह रही है. There may be some truth in these CAPM and APT theories. हमने देखा कि जनाब जो capital asset pricing model है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है जी. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वट एवर दी मार्केट रिस्क प्रीमियम इज. ठीक है. सो हमें पता है कि जनाब मार्केट रिस्क प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द बीटाज वैल्यू, and the market risk premium increases, so the value of the beta is with the correspondence of the beta, क्योंकि that beta discuss about the sensitivity of the security risk volatility with respect to market risk. so why not कि जो इसका जो प्रीमियम है, जो रिस्क प्रीमियम है, वो भी सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू बी दिस बीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट. अगर बीटा की वैल्यू लेट्स से 1.2 है, सो दैट मीन्स कि जनाब विद रिस्पेक्ट टू जो इसका मार्केट प्रीमियम है वो भी 1.2% इंक्रीज करेगा. ओके. नाउ एंड दैट बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप इसको देखेंगे कि जनाब ये जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि डिमांडेड है, इन्वेस्टर्स का रेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट है, दैट इज बेसिकली समहाउ व्हेन टेक द डिफरेंस आउट ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जो कि टी बिल्स का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज बेसिकली योर टी बिल्स. सो दैट बेसिकली गिव्स यू द सेम मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्वेशन. ठीक है. एंड उन्होंने बताया कि जो एपीटी थ्योरी है, जो एसेट प्राइसिंग थ्योरीज हैं जनाब, जो आपकी जिन्होंने बताया कि जनाब आपकी जो एसेट प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव है कैपम का, दैट ऑलवेज गिव यू द सेम रिजल्ट ऑफ ट्राई टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. But last year some stocks did much better than these theories predicted and other stocks did much worse. Is this a valid
क्रिटिसिज्म, और इन्होंने ये बताया कि जी कैपम और जो एपीटी थ्योरीज हैं उनके अंदर कोई ना कोई सदाकत है, लेकिन उनकी जो एक ट्रुथनेस है, इनकी जो सदाकत है, बेसिकली इनकी जो रियलिटी चेक है जब हुआ तो पता चला कि कुछ स्टॉक्स ने बेसिकली जो परफॉर्मेंस दी थी वो इनकी प्रेडिक्शन से, जो इनकी थ्योरी से हमने डेवलप की थी प्रेडिक्शन, उसके अगेंस्ट थी। इज दिस ए वैलिड क्रिटिसिज्म? ये जो क्रिटिसिज्म है आमतौर पे जनरली जब भी कोई मॉडल बनता है, कोई आपका फाइनेंशियल मॉडल बनता है, यहाँ पे जो ये इन्वेस्टर्स के लिए जो मॉडल आपको गिवन है, जो स्कॉलर्स ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, उनकी बेसिस पे जो क्रिटिसिज्म आता है दैट इज बेसिकली done in which gives the under the context or within the context of जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होता है, और वही हम उन रिटर्न्स की और स्टॉक्स की जो कम्बिनेशन है और उसका जो आपका एंड रिजल्ट है उसके अगेंस्ट अगर चला जाए, सो दिस इज बिकम्स द वैलिड क्रिटिसिज्म, जो यही पूछा गया इधर। तो यहाँ पे जो जवाब है इसका आंसर है नो, एवरी स्टॉक हैज यूनिक रिस्क इन एडिशन टू मार्केट रिस्क। कि जनाब आपका जो बीटा की वॉलेटिलिटी है, या मैं अगर कहूँ कि जनाब जो बीटा है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा, दैट बेसिकली मेजर दी सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी रेस टू मार्केट रिस्क। ठीक है जनाब, और इसी जुमरे के अंदर जनाब यहाँ से आपको बताया गया कि जनाब कोई भी जो स्टॉक है उसका जो मार्केट रिस्क के अलावा एक यूनिक एडिशन रिस्क भी होता है। ठीक है, दिस यूनिक रिस्क रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेन इवेंट दैट आर अनरिलेटेड टू द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। अगेन कि जनाब कोई ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे यूनिक रिस्क हैं विच इज़ बेसिकली द फर्म स्पेसिफिक रिस्क, जो कि यूनिक रिस्क हैं, यू कैन नॉट बेसिकली रिलेट टू द मार्केट पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एग्जिस्टेंस है स्टॉक की, उसके अंदर जो मार्केट रिस्क पोजेस कर रहा है उसकी वॉलेटिलिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं, एंड सो इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि जी एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ दैट स्टॉक, क्योंकि जो स्टॉक की है, जो कोई भी सिक्योरिटी है, जब उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेट्स से अगर वो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप कह लेंगे जी S&P 500 है आपका इंडेक्स, और KSE 100 इंडेक्स है जो आपका पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो भी सिक्योरिटी है A और B, ठीक है, उसकी जो रिस्क फैक्टर है या उसकी जो वेरिएशन है या वॉलेटिलिटी की हम जब बात करते हैं, तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसके अगेंस्ट जो भी आपको प्रीमियम होगा मिलेगा, दैट बेसिकली कैन बी जज विद रिस्पेक्ट टू वट एवर द मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो, जो कि उसी मार्केट के इंडेक्स से जो रिफ्लेक्शन है उसके थ्रू यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। बट व्हाट अबाउट कि जनाब जो यूनिक रिस्क है स्टॉक के अंदर वो भी पोजेस है, वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड है जब इस तरह की फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो दैट इज समहाउ अनरिलेटेड, you cannot relate with the market risk, and the capital asset pricing model doesn't predict these events. This is basically the main answer of it कि जनाब आपके जो ये मॉडल्स हैं it's very hard to predict these events क्योंकि these are basically unique to the stock। ठीक है जी। Now again we're going to go through with the few explanation statements and try to find out how they basically react, how they basically respond। Here we discuss about the asset pricing theory factors cannot reflect diversifiable risk. Is it true or not? हमें पता है कि जनाब आपके जो asset pricing theory है और उसके अंदर जो different factors हैं उसके basis पे you try to find out कि जनाब बताइए कि they cannot reflect diversifiable risks, कि जनाब जो एक diversifiable risk हैं जिसको you can easily diversify, can you बेसिकली यू नो उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो अभी हमें पता है एपीटी थ्योरी आपको क्या एड्रेस कर रही है, वो आपको डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बता रही है। वो कहती है कि जी हाउ अबाउट दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इन्फ्लेशन, आप कहते हो द इंटरेस्ट फैक्टर, आप कहते हो द इनकम इज देयर, आप कहते हो कि जनाब इट कुड बी एनी other factors as well plus the market factor and so on। So in these situation के नाम ये जो है they cannot reflect the diversifiable risk, क्योंकि ये जो factors हैं जो asset pricing आपकी theory है, जो model है, वो basically address कर रहा है कि जनाब
ये जो स्टॉक्स के अंदर जो उसकी सेंसिटिविटी है या जो उसके अंदर वेरिएशन है, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू दी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं इसको समराइज करके लिख देता हूँ कि दिस इज बेसिकली डन टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है जनाब, एंड दिस इज वाई दे बेसिकली सेड कि जनाब दे कैन नॉट प्रेडिक्ट डिवर्सिफाइबल रिस्क, बट येस दे एड्रेस द ओनली दो स्पेसिफिक रिस्क जो डिवर्सिफाई नहीं हो सकते, विच इज स्पेसिफिक टू द मार्केट, और प्लस विच आर बेसिकली can affect the returns of the stock. Now, this statement is true by definition. The factor represent macroeconomic risk that cannot be eliminated by the diversification, and this is why it said कि जनाब जो भी आपके macroeconomic variable जो macro variable से जो risk factor है, they cannot be eliminated by the diversification. और हमें पता है कि जनाब जो law of diversification है, अगर हम उसको देखें तो दे कैन ओनली इफेक्ट द यूनिक रिस्क और व्हाट वी कॉल इट फर्म स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है जी, बट दे कैन नॉट market risk. ठीक है जी, this is very important to understand. Now the market rate of return cannot be an asset pricing theory factor. Again कि जनाब उन्होंने बताया कि बताइए कि जनाब जो market rate of return है cannot be APT factor, कि जो भी market का return आ रहा है can that going to affect the stock prices. Again this statement is false. The APT doesn't specify the factors. Obviously this is the main लिमिटेशंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब लिमिटेशन जिसके अंदर है कि जनाब वो फैक्टर्स को स्पेसिफाई नहीं करता कि आपके ये फैक्टर्स क्या होने चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जनाब अगर मैं इधर इंटरेस्ट रेट लिखूँ, यहाँ पे मैं अगर जीडीपी लिखूँ, यहाँ पे मैं अगर प्राइस सीपीआई लिखूँ, प्राइस जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो वट एवर कि अगर आप ये बिलीव करते हो कि जनाब दिस गोइंग टू अफेक्ट द सी स्टॉक, दिस विल गोइंग टू अफेक्ट द ए स्टॉक एंड दिस इज गोइंग टू डी स्टॉक, राइट, एंड ऑल दीज कैन बी एक्यूमुलेटेड, और उसका जो इफेक्ट है वो आप इसका देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि जनाब बताइए इस जो पोर्टफोलियो का है जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं उसकी वॉलेटिलिटी से इफेक्ट होते हैं, उसका बेसिकली टोटल रिटर्न क्या है. सो नॉट द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज रॉन्ग बिकॉज द एसेट प्राइसिंग थ्योरी जो इसकी आपकी जो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती. सो दिस इज द मेजर लिमिटेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. Now we move on to the next statement. Let's go through with it and find out कि जनाब how to get to the solution of it. उसकी understanding हम develop करते हैं. And here it says each asset pricing theory factor must have a positive risk premium associated with it. Otherwise the model is inconsistent. Again यहाँ पे आपको बताया गया है कि जनाब जो आपके APT फैक्टर्स हैं मस्ट हैव ए पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम, कि जनाब उसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम होना चाहिए. अदरवाइज द मॉडल इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि मॉडल को बेसिकली दैट इज समहाउ डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. उसकी वजह ये है कि जनाब वट एवर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, अगर आप कहते हो कि जी मैं फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4, तो इन्होंने बताया कि इनका जो प्रीमियम है जो भी इसका रिस्क है, क्योंकि यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, तो रिस्क प्रीमियम मस्ट बी पॉजिटिव ऑफ ऑल ऑफ देम. ठीक है जी. अदरवाइज मॉडल इनकंसिस्टेंट. तो उन्होंने जो कहा कि दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू, इन्वेस्टर विल नॉट टेक ऑन नॉन डिवर्सिफाइबल रिस्क अनलेस इट एंटेल्स अ पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम. अगेन हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड रेट है, let it be R, right, this is कि whatever the risk free जो आपको अवेलेबल है प्लस whatever हम यहाँ पे बीटा लिख देते हैं, ठीक है, एंड प्लस हम दे देते हैं रिस्क प्रीमियम. So basically this is what we call risk CAPM. And again if you want to find out कि जनाब बताइए
कि रेट ऑफ रिटर्न है जो APT है, अगर हम कहते हैं कि जनाब इसका जो भी आपका रिस्क फैक्टर है उसके अंदर डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर उसका प्रीमियम जो है, ठीक है, ऑफ दिस फैक्टर 1 अब टिल एंड फैक्टर जब तक नहीं होगा तो यू कैन नॉट, जो इन्वेस्टर्स है दे बेसिकली कैन नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ए रिस्कियर एसेट। सो इसके अंदर इफ लेटर बी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और यहाँ पे आपकी रिस्कियर सिक्योरिटीज़ हैं, तो जनाब यहाँ पे आपको पता है कि जी जो रिस्क है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखता हूँ 0, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है यस देयर है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मस्ट बी सम बिटवीन 15% और समवेयर इन बी। सो जब रिस्क फैक्टर यहाँ पे होगा तो इसके होंगे रिस्क प्रीमियम भी डिमांड करेंगे, ठीक है जी, जो इन्वेस्टर्स हैं। सो दिस इज़ वाई बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि जनाब जब तक जो APT फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे उसका जो रिस्क प्रीमियम है, राइट, वो पॉजिटिव नहीं होगा। इन्वेस्टर विल नो गो फॉर इट बिकॉज एवरी रिस्क हैज़ टू बी कंपनसेटेड in terms of some extra bit of returns on it. So this can be termed as the risk premium. ठीक है dear students, now dear students, let's go through with this statement. There is no theory that specifically identifies the APT factor. Now dear students, the main thing to understand is कि how about कि यहाँ पे जो understanding है, there is no theory that specifically identifies the APT factors. True, different researchers have proposed and empirically investigated different factors, but there is no widely accepted theory as to what these factors should be. And again, जनाब उन्होंने बताया कि empirically भी जो different आपके researchers थे, they basically proposed what they suggested कि जनाब आपकी जो asset pricing theory है, it got some substance in it which says basically कि जनाब this is widely, let's say interrogating the macro variables, ठीक है जनाब, और वही जो macro variables है they basically are quite responsive to respective stocks, ठीक है जी, जो कि उन्होंने कहा कि जी stock A, B, C or whatever. So basically the researches has been going on, different researchers and scholars, they try to adopt and they try to stretch that asset pricing theory, they get the flavor out of that theory and they try to find out if we can add something to it and find a modified form of that asset pricing theory. And then what they propose basically, when they have exhausted an investigation and that is still going on, as they said, now this is a widely accepted theory as to what these factors should be for the identification of these factors, and what they suggested basically is the same कि जनाब हाँ जी, this is basically actually we demand and we need कि जनाब इस factors को identify करने के लिए the asset pricing theory is the best formation in order to reflect the true rate of return. ठीक है जी. Now let's go through with the again a different statement that basically says the asset pricing theory model could be true but not very useful, for example if the relevant factors change unpredictably. Now अब यहाँ पे जो objection है वो आपके factors के लिहाज से बताया गया कि बताइए कि इस पे जो criticism है again कि जनाब sometimes कि जो APT है इसकी भी limitation है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि limitation, और जैसे हमें पता है कि किसी भी मॉडल का इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो भी किसी के ना किसी पर्सपेक्टिव से यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट कंस्ट्रक्टेड ऑन फ्यू assumptions and on that basis it has some
hidden or wide open assumptions or the limitations as well, and on that basis कि जनाब उस पे उन्होंने यही बताया कि जनाब इसकी जो working है आया कि that is somehow there is a point where it become useless and if the relevant factor change unpredictably. अगर आप उसकी prediction जो है सही नहीं करेंगे उस factors की, obviously जो इसका effect है वो ultimately आपके result पे आएगा, and this is what this statement says, and what's your answer should be true. Now this is a true statement. To be useful we must be able to estimate the relevant parameters. Obviously this is somehow कि जनाब you are basically calculating, you are formulating a model, sort of a model which is based upon those parameters, and if that is not estimated in a proper manner, then it's actually the the condition or the whole construction of that model, the concept of that model been challenged straight away. And if this is impossible for whatever reason, the model itself will be of the theoretical interest only. Again, this is merely a discussion, you cannot apply it, there is no implication of this model anymore. But yes, obviously if you can easily identify or estimate those relevant parameters or those factors, you can easily judge the actual usefulness of this model, and this is very important that you can estimate, and you should estimate these factors to some extent, and you try to bridge a gap of that error. आपने उसको wide नहीं होने देना. जो आपकी estimation है, जो आपकी judgments हैं, obviously that possesses some errors, some limitations, right, some lackings, लेकिन try to bring in that gap, try to bridge the gap, try to reduce that element of the doubts and the errors in your judgments and estimations. This is very important in order to find a true responsive results from this model. ठीक है students? Now let's consider a sort of example. APT model. Consider the following simplification APT models. Now we got the factors. Here are the factors. I would write it down. कि जनाब आपका factor 1 is market, then the interest rate, and then the yield spread. And again according to these factors, जैसे मैं बताया कि जो APT के अंदर है जो आपको factors है वो given नहीं होते. You got to identify with their respective stocks. मैं ये कहता हूँ कि जनाब respective stocks पे, और इसके अंदर जो आपका पहला फैक्टर है that is basically says market, और इसके अंदर जो stock है that is P, and then again the interest rate, and the factors is P1, and then given the yield spread which is basically P3. And again this is very important कि हमने देखा कि investor shouldn't go to invest unless or until he can get some risk premium. Yes, the expected risk premium है against these factors. You can see that these are the 6.4%. The interest rate is also given, which is in a negative figure of minus 0.6%, and the yield spread is 5.1%. These are basically what the investors demands. ठीक है जनाब, and this is very important, otherwise they will not willing to invest. ठीक है जी, which is very important. Now the factor risk exposures, let's find out कि जनाब उसका जो risk exposures था with respective beta, और हमें पता है कि जनाब जो market और stock की जो volatility है, जो sensitivity है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ with respect to that market, और जो securities का जो ये risk factor आपको बता रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि securities sensitivity है, तो यहाँ पे जो risk of the सिक्योरिटी है, जो सेंसिटिविटी है वो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 विद रिस्पेक्टिव डिफरेंट आपको
बीटा गिवन है। सो जो स्टॉक 1 का है वो 1 है, लेट इट बी कि जनाब स्टॉक 2 का 1.2, स्टॉक 3 का जो मार्केट है 0.3, एंड देन अगेन जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज बेसिकली द बीटा 2 विच इज बेसिकली यू गॉट टू आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स ऑफ इट, एंड दिस इज बेसिकली द सेंसिटिविटी एंड दैट बेसिकली जज जो उन्होंने रिस्पेक्टिव दे दिए कि जी इंटरेस्ट रेट्स का -2, एंड इसी तरह यील्ड स्प्रेड का भी -0.2 है, एंड प्लस इंटरेस्ट रेट का जो P2 का है दैट इज 0 एंड 0.3 एंड 0.5 जो कि इनका इंटरेस्ट रेट का है और यील्ड स्प्रेड का 1 है। राइट जी, ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं और हमें पता है जो एसेट प्राइसिंग थ्योरी मॉडल है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन द एस्टिमेशन, द ट्रू एस्टिमेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि दिस इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस पोर्टफोलियो, और उसी बेसिस पे पी स्टॉक है, और पी स्टॉक के बाद आपने देखा कि जी जो 1 है इंटू 6.4%, लेट्स फाइंड आउट कि दिस बेसिकली टेल्स यू दिस कि जनाब देखिए यहाँ पे जो बीटा 1 की वैल्यू है दैट इज बेसिकली स्टूड एट 1, एंड देन विद रिस्पेक्टिव मार्केट प्रीमियम जो कि 6.4% है। इसी तरह जो बीटा 2 की वैल्यू है स्टॉक की दैट इज -20 जो कि इंटरेस्ट का बीटा 2 वैल्यू है, एंड दैट इज रिस्क प्रीमियम जो इधर गिवन है दैट इज बेसिकली -0.6%, एंड अगेन जो बीटा 3 है दैट इज नेगेटिवली जो बीटा की है सेंसिटिविटी शो कर रहा है विच इज बेसिकली जो यील्ड स्प्रेड का मार्केट रिस्क प्रीमियम है। और जैसे कि यहाँ पे आगे कैलकुलेशंस आप देखिएगा कि जिसके अंदर दे सिंपली मल्टीप्लाई द वैल्यूज जो कि बीटा 1 के रिस्पेक्टेड 2 एंड दिस इज 3 विद द रिस्पेक्टेड प्रीमियम्स। हम यहाँ पे प्रीमियम ले देते हैं, अगर ये मार्केट का है अगर हम यहाँ पे प्रीमियम लिखते हैं दैट इज बेसिकली द इंटरेस्ट, और यहाँ पे अगर हम प्रीमियम लिखते हैं लेट इट बी द प्रीमियम ऑफ स्प्रेड, ठीक है जनाब, एंड अगेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न वुड बिकम 6.58%। इसी तरह जो रिपीट करेंगे हम कि जनाब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने फाइंड करना है दैट इज बेसिकली स्टॉक पी का, जो कि हम देखते हैं कि जनाब P2 के अंदर जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे गिवन है रिस्पेक्टिव, कि मैं यहाँ पे इसको स्केयर के अंदर कर लेता हूँ 1.2 जो कि अगेन उसके अगेंस्ट मार्केट रिस्क प्रीमियम 6.4% है। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ जनाब स्केयर 0 है और उसके अगेंस्ट जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है जो कि एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम है और द इंटरेस्ट रेट दैट इज -0.60%, और जो यहाँ पे स्केयर है विच बेसिकली शोइंग द बीटा सेंसिटिविटी वैल्यू ऑफ द यील्ड स्प्रेड अगेंस्ट जो कि इसका स्टॉक का है, और इसका जो रिस्क प्रीमियम है यील्ड का दैट इज गिवन here the 5.1%. Now again if you move forward and calculate it you can easily do, which is simply the repetition of how you basically calculated the stock P, ठीक है जनाब। और इसमें हमने देखा कि this is basically the respective values and with the respective premiums, जो risk premiums है तो यहाँ पे मैं risk premiums अगर लिख देता हूँ, ठीक है जनाब, तो हमें पता है M for market, this is beta 2, तो this again is risk प्रीमियम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जनाब आपका इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट है एंड दिस इज बेसिकली अगेन योर्स रिस्क प्रीमियम जो कि हम लिखते हैं स्प्रेड, ठीक है जी, उसके 5.1 एंड दिस इज बेसिकली दी beta 3 value, and again when you calculate it that gives you slightly higher expected rate of return which is basically 9.21%. So these factors how they basically come up with the different values which is basically the sensitivities value जो कि बीटा की है, and again when we estimated the exact parameters of it, और वो जो parameters है जो factors identifications है उसके अंदर हमने देखा कि जनाब इसके अंदर market है, interest है और yield spread है। again हम इसके अंदर देखते हैं जो P3 है उसकी सेम रेपिटेशन है, और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज ऊपर लिख देता हूँ, बीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू वट एवर दी रिस्क प्रीमियम है, यहाँ पे जो मार्केट का है अगेन बीटा 2 इंटू वट एवर दी रिस्क प्रीमियम है जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का है, एंड अगेन बीटा 3 जो कि यहाँ पे रिस्क प्रीमियम की बात कर रही हैं ऑफ द स्प्रेड, ठीक है जनाब, एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6.72%,
एंड कंपेयरिंग इट वी हैव सीन कि जनाब आपका जो स्टॉक 2 है दैट हैज़ ए हायर परसेंटेज in terms of expected rate of return and with the sensitivity of those betas value of those parameters जो factors हैं जो कि इसकी stock की return पे affect कर रहे हैं. Now move on to the B part of it which basically says कि the factor risk exposure for the portfolio कि जनाब इसका जो factor risk exposure है उसका जो portfolio का है how to calculate that what is basically this. So factor risk exposure आइए find करते हैं. दैट इज़ कि जी आपने जो बीटा 1 मार्केट है विच इज़ बेसिकली इक्वल टू इन्होंने बताया कि जनाब इसका रिस्क फैक्टर फाइंड कीजिए विच इज़ बेसिकली 1/3 इंटू 1 जो भी आपकी यहाँ पे आपकी बीटा की वैल्यू है. मैं यहाँ पे बीटा 1 लिख देता हूँ एंड अगेन 1/3 इंटू 1.2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन कि जी आपकी बीटा 2 की वैल्यू है एंड अगेन 0.3 विच इज़ बेसिकली गिवन एज बीटा 3 जो कि रिस्पेक्टिव आपकी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे जो मार्केट है अगर मैं यहाँ पे देखूँ आइए देखते हैं कि यहाँ पे 1, 1.2 और 0.3 है डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टॉक्स की और यहाँ पे भी वही जो मार्केट के बारे में बताया कि जनाब आपके विद रिस्पेक्टिव जो आपकी बीटा 1 है दैट इज़ बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक 1 ठीक है. अगेन दैट इज बेसिकली एक्सक्यूज मी द बीटा 1 विच इज बेसिकली द स्टॉक 2 एंड अगेन दिस इज बीटा 1 विच इज बेसिकली द स्टॉक 3 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे जो बीटा 1 जो फैक्टर रिस्क एक्सपोजर है दैट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ एवरी सिंगल वैल्यू और ये जो 1/3 है दैट इज बेसिकली द 1/3 ऑफ दोज फैक्टर. आप यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो आपको पता कि जनाब यहाँ पे एक तो मार्केट रिस्क प्रीमियम की बात हो रही है एक इंटरेस्ट की बात हो रही है रेट की एंड देन दी यील्ड स्प्रेड की बात हो रही है. तो हमने काउंट किया 1, 2, 3. तो अगर मार्केट की क्या होगी ठीक है दैट इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ बोथ के 1/3 सिंपल इज दैट. एंड अगेन अगर हम यहाँ पे करें इंटरेस्ट रेट की क्या होगी तो अगेन 1/3 जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और इसी तरह ही अगर हम यील्ड स्प्रेड की बात करते हैं दैट इज अगेन द 1/3 ऑफ द व्हाटएवर द पार्ट ऑफ द दोज फैक्टर्स इन द पोर्टफोलियो. एंड अगेन बीटा 2 जो है वो बीटा 2 की वैल्यूज को कंसिडर करेगा. दिस इज बेसिकली जी इंटरेस्ट रेट जो कि सारा इस इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है कि लेट इट बी -2, 0 एंड 0.5 और यहाँ पे हमने देखा कि जनाब ऐसे ही हुआ 1/3 जो कि इसकी एक वेट है प्रोपोर्शन है इस फैक्टर का एक्सपोजर कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रेट का और -2 एंड प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 0.5 विच गिव्स यू द बीटा वैल्यू ऑफ जो सेंसिटिविटी है -0.50. अगेन सिंपल रेपिटेशन हम करेंगे जो कि यील्ड स्प्रेड के बारे में है. तो अगेन उसकी जो फ्रैक्शन है इनटू द रिस्पेक्टिव बीटाज एंड ऑफ द स्टॉक्स और फिर यहाँ पे आपको पता चला कि जनाब ये जो स्टॉक्स हैं लेट इट बी कि जी मैं कहता हूँ जी P है P2 है एंड अगेन 3 राइट एंड यील्ड स्प्रेड के रिस्पेक्टिव जब आप वैल्यू कैलकुलेट करें दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 0.37. Now dear student, this is very important to understand कि जनाब whenever you going to find out the factor risk exposure for the portfolio और उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको पता है डिफरेंट स्टॉक्स हैं. तो यहाँ पे मैं अगर पोर्टफोलियो बना लूँ तो यहाँ पे आपके पास जो स्टॉक्स ही है ठीक है आप कहते हो जनाब P1 है P2 है एंड P3 है. दीज आर द वैल्यूज ऑफ इट और उसी बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब इन सारों का जो पोर्टफोलियो है इसका रिस्पेक्टिव फैक्टर्स भी हैं जो कि 3 है फैक्टर्स ठीक है. तो जब हमने इसका पोर्टफोलियो कंसल्ट किया तो पता चला कि अगर आप फैक्टर वाइज निकाल रहे हैं फॉर दी पोर्टफोलियो जो फैक्टर रिस्क एक्सपोजर है कि जी आपका जो फैक्टर रिस्क एक्सपोजर जब आप फाइंड करेंगे तो क्या है तो विद रिस्पेक्टिव स्टॉक्स है. तो यहाँ पे भी हमें पता है कि जी इसका इस फैक्टर का लेट्स से फैक्टर 1 का मैं कहता हूँ यहाँ पे फैक्टर 1 का जो 3 इसके स्टॉक्स हैं P2 एंड P3
ठीक है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। एंड F2 है इसी तरह, जो कि इंटरेस्ट रेट का हमने कहा P, P2 एंड P3। एंड अगेन F3 की बात करते हैं हम, P, P2 एंड P3। दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट इनटू द पोर्टफोलियोज, जो कि आपके इसको शो कर रहा है। नाउ व्हाट इज द पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न? क्या बताइए, आपने जब फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, आपने जो रिस्क एक्सपोजर जो फैक्टर्स का वो फाइंड आउट कर लिया, अब आप बताइए कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा। तो हमने यहां पे देखा कि जनाब 0.83 इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोजर ऑफ द फैक्टर 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपका जो फैक्टर रिस्क एक्सपोजर, ठीक है जी, ऑफ पोर्टफोलियो। ऑलवेज रिमेंबर पोर्टफोलियो comprises of 3 stocks, P, P2 and P3। और फैक्टर रिस्क एक्सपोजर बेसिकली आपके फर्स्ट वन इज गुड, विच वन? मार्केट। और उसी मार्केट का जो बीटा 1 है, जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो पता चला इसी पोर्टफोलियो का दैट स्टूड एट 0.83। वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? यस, इंटरेस्ट रेट। मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट रेट। और इसका जो बीटा 2 जो हमने इसका पोर्टफोलियो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ P, P2 एंड P3 हमने फाइंड आउट किया, तो वो आपके पास कौन सी फिगर आई? यस, माइनस में आई। गुड। और उसके बाद जब हमने थर्ड की बात की, तो थर्ड के अंदर आपके पास यील्ड स्प्रेड, ये एक फैक्टर था जो कि बीटा 3। और जब हम एवेल्युएट किया, इसकी वैल्यू जब आपके पास आई, तो दैट स्टूड एट 0.37। वेरी नाइस। विद द पोर्टफोलियोज अंडर दैट पोर्टफोलियो। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि दिस इज बेसिकली मार्केट बीटा 1 वैल्यू विद रिस्पेक्टिव विच वन? गुड, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मैं यहां पे लिख देता हूं risk premium of that market, and you're going to add with the respective beta value of the interest with their interest premium। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट ठीक हो गया, बीटा 2 जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि पोर्टफोलियो बीटा है वैल्यू, जो सेंसिटिविटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो ऑफ दैट फैक्टर हम बात कर रहे हैं, विद देयर रिस्पेक्टिव रिस्क प्रीमियम। तो मैं यहां पे रिस्क प्रीमियम की बात कर लेता हूं, लिख देता हूं, जो कि माइनस में वैल्यू थी अगेन 0.37, विच इज बेसिकली गिवन एज द यील्ड स्प्रेड बीटा। ठीक है जनाब, बीटा 3 कर लेते हैं इसको, और जब वो मल्टीप्लाई होता है इसके रिस्क प्रीमियम जो कि 5.1% था, दैट गिव्स यू द हैंडसम अमाउंट ऑफ 7.5%, एंड दिस इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। So you can easily calculate what would be the portfolio's expected return. Now dear students, let's go through with the another numerical which is basically describing the 3-factor model, and we just go through with the asset pricing theory model which basically depicts the same concept कि जनाब जो आपके different factors हैं वो कैसे initiate करते हैं, affect करते हैं return of the individual stocks के। और फिर आपने ये फाइंड किया उस फैक्टर का जो रिस्क पोर्टफोलियो का है, जो आपने रिस्क एक्सपोजर है, उसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई व्हाट? यस, कि जनाब उसका टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न अब क्या बनेगा। नाउ अब हम देखते हैं 3-factor मॉडल। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेंसिटिविटी ऑफ द 4 स्टॉक्स टू द 3 former French factors in the 5 years to 2001. Estimate the expected return on each stock assuming that the interest rate 3.5%. Now यहाँ पे हमने जो पहला करना है, that is basically the estimation of expected return. So we need to identify कि जनाब बताइए expected return जो individual stocks का on each stock assuming the interest rate is 3.5% कि जी expected return individual stocks का क्या होगा? individual स्टॉक्स का क्या बनेगा? पहले तो आपने ये रिक्वायरमेंट करनी है। और द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम ऑन द साइज फैक्टर, जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो गिवन है। और
इस फैक्टर्स के अंदर अगर हम काउंट करते हैं, दिस इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम, दिस इज बेसिकली द मार्केट रिस्क प्रीमियम, दिस इज द साइज फैक्टर प्रीमियम, एंड दिस इज बुक टू मार्केट फैक्टर प्रीमियम. 4 factors are given. Basically this is the market interest rate we are talking about, and plus the आपकी जो book to market factor है, and then size factor है, small and big का जो comparison है. और उसी के अंदर हमने देखा कि जनाब obviously the growth stock, value stock, और इसी तरह small and big के अंदर भी जब आप calculate करते हैं तो yes that become the Farmer French famous 3-factor model. And again when we go through with this table, you can easily calculate the respective requirements, and जो factors हैं वो given है. Again यहाँ पे for your correspondence, यहाँ पे जनाब understanding, यहाँ पे this is 1 2 3. ठीक है जनाब. और इसी बेसिस पे जनाब जब आप ये देखेंगे, चेक करेंगे कि जनाब अब बताइए कि इसका जो एक्चुअल आपका स्टॉक्स गिवन है वो कितने, आइए गिनते हैं. दिस इज बेसिकली कोका कोला स्टॉक 1. दिस इज बेसिकली दी फैक्टर सेंसिटिविटी जो कि यहाँ की मैं कह लेता हूँ कि जनाब बीटा वैल्यू है, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4. This is very important to identify, and again this is a stock, 4 stock given in it, and this is respective जो आपका फैक्टर सेंसिटिविटी की वैल्यूज गिवन है, और जो रिस्क प्रीमियम है वो आपको गिवन है, विच इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट का 3.5% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है 8.8% है, एंड अगेन 3.1% इज दी साइज का, और बुक टू मार्केट का 4.4% है. तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स जो गिवन हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर है, जो इंटरेस्ट रेट आपका प्रीमियम गिवन है दैट इज 3.5%. आपने कोका कोला का जब फाइंड किया तो आइए देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं. हमें पता है कि आपने रिस्पेक्टिव जो बीटा की वैल्यू है, ठीक है, लेट इट बी कि जनाब दैट शोज द सेंसिटिविटी ऑफ दोज फैक्टर जो रिस्क एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट के, और उसके अगेंस्ट द मार्केट रिस्क प्रीमियम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे डिफरेंट फैक्टर्स का विद देयर करस्पॉन्डिंग सेंसिटिविटी फैक्टर्स. ठीक है, सेंसिटिविटी इज प्रोडक्ट ऑफ द सेंसिटिविटी एंड द मार्केट प्रीमियम ऑफ दोज फैक्टर्स. और यहाँ पे दिस इज बेसिकली द इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट प्रीमियम. 0.82 आप देखिए यहाँ पे ये मार्केट बीटा की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे बीटा 1 लिख देता हूँ इंटू 8.80% जो कि आपका क्या है, गर्ड. दिस इज बेसिकली दी रिस्क प्रीमियम. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्क प्रीमियम, वही हमने जो पीछे फाइंड किया, सिंपल इज दैट इसकी कैलकुलेशंस के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर फैक्टर डिफरेंट है. तो 0.82 इंटू 8.8% विच इज एक्चुअली द रिस्क प्रीमियम ऑफ दैट मार्केट. एंड अगेन when we going to multiply the beta 2 value जो कि जनाब साइज की है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम कोका कोला की है तो कोका कोला से आप इस तरह जाएंगे, तो ऑब्वियसली अगेन दिस इज बीटा 1 विच इज शोइंग कि आपकी यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट है कॉम्बिनेशन है वो कैसे चेंज होगा कि जनाब यहाँ पे अब आप देखिए ये एक मिनट, ठीक है. यहाँ पे हम देखेंगे कि जनाब हाउ बेसिकली दैट शिफ्ट्स द गियर्स, और उस बेसिस पे आपकी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे टेबल डिफरेंट है, तो ये अगर आपका बीटा 1 है, लेट इट बी कि जी मैं कहता हूँ कि दीज आर दी वैल्यू ऑफ इट, दिस इज बीटा 2 जो कि साइज का है, एंड दिस इज बीटा 3. दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इसी तरह आपकी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक्स हैं, ये आपके स्टॉक्स गिवन है यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ पे बीटा 2 माइनस 0.29 जो कि यहाँ पे बीटा 2 इंटू आप 3.1% जो कि इसका रिस्क प्रीमियम है, देन यू गोइंग टू एड इट अप, और जब आपके पास वैल्यू आएगी रिटर्न ऑन द कोका कोला स्टॉक दैट बिकम्स 10.87%. नाउ डियर स्टूडेंट, जो आपका एक्सन है दैट इज बेसिकली अगेन आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम जो गिवन है 3.5%, और आप सेम जो रेपिटेशन है कैलकुलेशंस की वो इस पे अप्लाई करेंगे.
let it be 0.50 which is actually the beta 1 value of the axon की हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ that is basically stored at beta 1 and again this is basically the beta 2 and again this is beta 3 जो कि यहाँ पे आपको respective values given हैं with their product of risk premium जो कि 8.8% है 3.1% है 4.4% है so यहाँ पे जो आपका always remember कि 3 factor even के फार्मा फ्रेंच 3 factor जो आपकी मॉडल है that is basically corresponding the same कि जनाब what is your market ठीक है जी plus you going to add up the size effect लेकिन ये जो आपका प्रीमियम है that has to be dealt with the sensitivity of that beta again जो size effect है मैं size effect लिख देता हूँ उसकी जो भी सेंसिटिविटी है वो बीटा से एंड प्लस यू गोइंग टू ऐड अप क्योंकि ये आपका आर है रिक्वायर्ड कैसे कि यू गोइंग टू ऐड अप विद द बीटा 3 विच इज बेसिकली द बुक टू मार्केट ठीक है जी रेशो की बात हम कर रहे हैं सो इन दैट सिचुएशन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वट एवर योर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था जो कि कोका कोला एक्सन हमने फाइंड किया तो कोका कोला का 10.87% है एक्सन का यहाँ पे 9.21% है तो बेटर ऑफ बेसिकली दी कोका कोला सो फॉर विद रिस्पेक्टिव फैक्टर्स एंड ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं आपके रिटर्न्स पे दिस इज व्हाट इज बेसिकली शोइंग हियर अगेन सिंपल रेपिटेशन है आपकी जो भी बीटा की वैल्यूज गिवन है विद रिस्पेक्टिव प्रीमियम्स जो कि हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी और ऐड करेंगे इन प्रोडक्ट्स को ये गिव दिस 7.2% अगेन रेपिटेशन जब करेंगे रीबॉक की सो दैट गिव्स यू 21.08 नो इधर जो मेन चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दिस बीटा वैल्यू ऑफ रीबॉक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिफाई कर देता हूँ टू फॉर यू गाइज टू एब्जॉर्ब इट कि जनाब जो बीटा यहाँ पे 3 है जो कि बेसिकली बुक टू मार्केट कौन सी है जी यस बुक टू मार्केट फैक्टर को डिस्कस कर रहा है रीबॉक का दैट स्टूड एट 1.14 लुक एट दैट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट सो इफ दैट इज द सेंसिटिविटी ठीक है जी सेंसिटिविटी टू रिस्क एक्सपोजर ऑफ फैक्टर्स जो कि यहाँ पे आपका बुक टू मार्केट है सो दैट मीन्स कि जी 1.14 कंपेयरिंग टू वट एवर द रिस्क प्रीमियम ऑफ दैट जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट गोना बूस्ट अप द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि उसके अंदर उसकी सेंसिटिविटी बता रहा है अगर इसके अंदर जितना परसेंटेज नीचे गिरेगा जितना प्रीमियम नीचे गिरेगा उसका इफेक्ट भी उसके स्टॉक पे आएगा ठीक है जनाब और इसी बेसिस पे जब हमने फाइंड किया यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिटर्न है द हाईएस्ट ऑफ ऑल यू कैन इजीली फिगर आउट कि जनाब रीबॉक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका यहाँ पे रीबॉक ठीक है रीबॉक इज द हाईएस्ट गेनर So under this factor model you can easily compare different factors with respective beta values और जिसकी जो beta value है वो sensitivity बता रहा है exposure of those factors बता रहा है and how they going to affect the overall return of those values जो कि expected returns है और इसी basis पे हमने जब इसको identify किया इसको evaluate किया we come to conclusion कि जनाब आपकी जो बीटा की वैल्यू है जो आपकी जो स्टॉक्स हैं जब वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ उसके कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स वो कैसे उस पर इफेक्ट डालते हैं और ये इफेक्ट जो है दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटिंग दोज फैक्टर्स क्योंकि वो जो एस्टिमेशन है उन फैक्टर्स की that is not given, that is not provided by this model. Unfortunately, this is the biggest limitation of the asset pricing theory and plus the फेमस फार्मा फ्रेंच मॉडल जो 3 फैक्टर मॉडल है उस 3 फैक्टर मॉडल के अंदर फार्मा फ्रेंच दे बेसिकली गिवन इट they contributed it they said okay hold on we going to give you the basically the 3 factor models
उन्होंने प्रपोज किया कि जनाब उसकी जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी है वो तो मार्केट है ही और उसी के अगेंस्ट आपने प्रीमियम तो लेना ही। हाउ अबाउट कि जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक है जो कि एक उन्होंने बेसिकली बुक टू मार्केट और जो साइज स्मॉल एंड बिग का कैपिटलाइजेशन जो है, जो इनके ट्रेड स्टॉक्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया, जो कि अल्टरनेटिव टू दी कैपम थ्योरी है, कैपम मॉडल है, जो कि रिक्वायर्ड रेट रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स का है। तो इस बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट कि जनाब बताइए कि इनकी रिस्पेक्टेड जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो क्या निकलते हैं और उन बेसिस पे यू कैन इजीली अकोमोडेट एंड इवेलुएट द रिस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, whatever we discussed, let's summarize it. We discussed about the qualifications of the different statements and we discussed कि जनाब जो आपकी different theories हैं, statements है, उस पर consensus कैसे draw करना है और हमने देखा कि जनाब उसकी basis पे जो trade off है investors का, आपका return और risk factor है वो कैसे आप identify करेंगे, absorb करेंगे. Then we go through with the different numeric examples in which we discuss about how to calculate the expected return with their respective risk factors in terms of CAPM जो कि capital asset pricing model है. Then we discuss about the asset pricing theory जो कि alternative theories हैं और उसकी basis पे we try to accommodate कि जनाब इसके जो different factors हैं जो कि सबसे बड़ी limitations है इस theory की कि they cannot identify, they cannot estimate exactly what would be the factors and this is what the need some practice, need some effort in order to identify those factors with respective stocks. और उस बेसिस पे फिर हमने देखा कि उसका जो रिटर्न्स है वो कैसे आप बूस्टअप कर सकते हो इस फैक्टर्स की वजह से और या फिर इस फैक्टर्स की वजह से स्टॉक के रिटर्न पे क्या वेरिएशन आ सकती हैं. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल एंड वी डिस्कस कि जनाब जो लिमिटेशन थी एसेट प्राइसिंग थ्योरी की दैट बीन somehow taken care by these three factors and उस factors पे हमने market risk देखा, size effect देखा and then we accommodate the yet another factor which is basically what? Yes, book to market factor. Till now students, see you next time. It's goodbye.